So questions. That's it. approximate, if you're comfortable, I would like to know from you, just to give idea to others, how much do you earn from these websites individually, from Chegg, from Bartleby and Transluter? Hey everyone, today I have someone with me who works for a couple of platforms and who earn money online. So I thought of resolving some of your questions. आप लोग काफ़ी सारे questions मुझसे comments में पूछते रहते हैं, तो आज मेरे साथ कोई ऐसा है जो आपके इन queries को resolve कर देगा और जो already उन platforms पे work करता है. So let me introduce her to you. Hi Dimple, just give me a little Hi. introduction of yours so that my subscribers know you. Okay. Hi, everyone. I'm Dimple Saragi, and I work on 3 platforms, that is Check, Bartleby, and TransTutors as well. Okay. And apart from that, I'm also a student, and I also have a dance channel. Okay, So I that's also good. request you all to go and visit that. Sure, sure. I and what kind of dance do you perform? Classical one or Western one? I like, I do all kinds of dance forms. Okay. Okay, You that's can go good. and visit it and see. Sure, sure. And then, yeah, there are tutorials for you from which you can learn. Okay, that's And good. yes, it would be great if you can go and I check that. I think I would learn from you. I want to learn dance, so I would come to you, okay, Yeah, yeah, for that. sure. Okay, Yeah, so sure, sure. so the first platform I'm picking today, I have a list of questions here with me, okay, and the first platform I'm Okay. picking today is Check because it is quite a famous and many Yeah, people work on this, okay. तो चेक के yeah. बारे में जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे सब्सक्राइबर्स ने पूछे वो मैं हाँ, आपसे पूछूंगी आप मुझे उसके आंसर्स देना ठीक है ताकि सब्सक्राइबर्स को पता चले yeah, yeah. तो सबसे पहले तो कैसे पता चलेगा कि चेक पे कि उनका आंसर सिलेक्ट हो गया है और उनको उस चीज़ की पेमेंट रिसीव होगी चेक पे ऐसा है कि जैसे कि सपोज आपने अप्रैल मंथ में एंटायर मंथ यू सॉल्व क्वेश्चंस ओके देन लाइक इफ यू सॉल्व एंटायर मंथ देन लाइक नेक्स्ट मंथ में अराउंड May 13 आपको नोटिफिकेशन आपको नोटिफाई कर देंगे कि आपके ये आंसर सेलेक्ट हो गए हैं और आपका इतना पेमेंट है बोलकर एंड ओके देन टिल 15th of May आपको पेमेंट कितना मिल जाएगा उसमें ना ओके ये सिस्टम है okay that's good sometimes my subscriber says that subjects are not available or not visible on the list suppose chemistry or physics or whatever या why does it happen It is, of course, like because of it is according to the demand of questions ना जैसे कि अब hmm साइंस के रिलेटेड कम डिमांड है तो फिर ऑब्वियसली वो लोग नहीं शो करते जिस right सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिमांड होगी वही होंगे so at राइट that particular period of time if you are applying for instance maybe if they don't need tutors right या at that particular पर्टिकुलर time टाइम में hmm बाद में आ भी सकते हैं ऐसा होता है हाँ it keeps मैक्सिमम changing क्वेश्चंस अकाउंट्स एंड ऑल के होते हैं okay all right अभी तक okay एक्चुअली चेक पे किस किस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं चेक पे ऐसा है कि जैसे कि आप यहाँ हैंड रिटन सॉल्यूशंस दे सकते हैं ठीक है लेकिन प्रोवाइडेड कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए नीट एंड क्लीन सॉल्यूशंस okay ओके okay यस यू कैन अपलोड लाइक अकॉर्डिंग टू द डिमांड है जैसे क्वेश्चन की डिमांड है आपको एक्सेल फाइल में करना है तो आप एक्सेल फाइल में करिए hmm या फिर पीडीएफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स इट्स okay योर विश राइट okay and which subject do you teach on check अकाउंट्स accounts okay that's good या so I have heard there's a lot of demand for science so in your field because I know most of my subscribers are from science background okay ओके so ओके I would like to know from you what are the other subjects which are in demand related to accounts maybe you can tell us अकाउंट्स के सब जैसे कि अभी तक एज आई ऑलवेज जस्ट गो फॉर अकाउंट्स टू सी लाइक कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं okay तो फिर अकाउंट्स हो गया केमिस्ट्री hmm एंड देन या दैट्स इट साइंस इट्स या इकोनॉमिक्स okay economics accounts maximum demand is of these 2 subjects till now. okay and how many hours do you give in a day It's like according the way I'm free है ना जैसे कि अच्छा जैसे क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी देखती हूँ hmm है ना जितना अवेलेबल होता है लाइक इन Bartleby if you say then if I log in right once you log in Bartleby then they give you 10 minutes to whether you accept that question or decline it once you okay accept it then you have 2 hours to solve that question you have to give
you have to solve it in within the 2 hours itself. ओके ओके, कमिंग टू बाटलबी, अच्छा हुआ आपने बाटलबी के बारे में बात की। बाटलबी में सबसे ज्यादा लोगों को चैलेंज हो रहा है जो सेकंड टेस्ट है ना उसको अपलोड करने में। तो ये मेरे पास कांस्टेंट कमेंट आ रहा है कि सेकंड टेस्ट जब सेकंड टेस्ट देते हैं ना ये जब प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो सेकंड टेस्ट अपलोड नहीं हो पाता उनका। ये वाली एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे ये सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे हैं। अपलोड नहीं हो पा रहा तो ये ऑब्वियसली एक टेक्निकल इश्यू है ना। दे शुड जस्ट आई मीन पर वो दो ही टर्न, मेल वगैरह, उनको दो ही वो मिलते हैं ना, दो ही टर्न मिलते हैं ना, अटेम्प्ट्स हाँ मिलते दो हैं। अटेम्प्ट्स, राइट राइट। इट्स ऑल, ये तो उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम ही है, टेक्निकल इश्यू है, तो उनको इसमें उन्हीं से बात करनी वी पड़ेगी। कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? या वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, अच्छा, और अगर आंसर की फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही हो बाटलबी में तब? आंसर की फोटो, ये भी फिर टेक्निकल इश्यू ही हो गया, ये भी आपके वही साथ बात हो हुआ गई कभी है ना। ऐसा? नहीं मेरे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ओके ओके, कभी कभी जैसे कि थोड़ा थोड़ा टाइम में हुआ है, बट देन रिजॉल्व हो जाता है कुछ दिनों में ना, ओके। ऐसा है। बाटलबी में कैसे पता चलेगा कि आपके आंसर सिलेक्ट हो गए हैं और आपको उसकी पेमेंट मिलेगी? डू दे सेम प्रोसेस है जो ओके मैंने चेक के लिए बोला ना अभी, ओके वैसे ही प्रोसेस है उसमें भी। फर्स्ट जैसे, लेकिन ये जल्दी कर देते हैं, लाइक चेक में 13th मई तक नोटिफाई होता था, तो बाटलीबी में 1 मई में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपके ये क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए हैं बोलकर, एंड दिस मच पेमेंट। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या कोई टाइम लिमिट होती है बाटलबी पे आंसर देने की? या आई सेड नो, जस्ट कि 2 आवर्स लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है फॉर अ राइट राइट क्वेश्चन। राइट राइट, या अच्छा, अगर एप्लीकेशन फेल हो जाए एक बार बाटलबी में तो कितने कब कब फिर रीअप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल रीअप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक बार आपका एप्लीकेशन फेल हो गया तो फिर वो खुद ही आपको वाया मेल बोल देंगे कि आप 2 to 3 months में रीअप्लाई कर सकते 2 हैं, to तो 3 फिर वो खुद ही मंथ्स आपको बता देते हैं। ओके ओके। या और डिपेंड अपॉन द वैकेंसी, ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, राइट। या और बाटलबी पे किस किस फॉर्मेट में आंसर अपलोड कर सकते हैं? हैंड रिटन कर सकते हैं? हैंड रिटन इज नॉट अलाउड इन बाटलीबी, जस्ट ओके अलाउड इन चेक। ओके बाटलीबी में वही है, लाइक उधर ही जैसे क्वेश्चन लिखा हो तो वहां पर नीचे ही बॉक्स होता है, आप खुद टाइप करके उधर आंसर लिख दो, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स या एक्सेल फाइल्स, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके ओके। नाउ कमिंग, यू आल्सो वर्क फॉर ट्रांसट्यूटर, राइट? यस ओके, आई डू। ट्रांसट्यूटर में किस फॉर्मेट पे आंसर दे सकते हैं? ट्रांसलेटर में भी सेम है, हैंड रिटन इज नॉट अलाउड, है ना। बाकी उस क्वेश्चन के नीचे ही बॉक्स होता है, उसमें आप टाइप करके लिख सकते हैं, ओके और एक्सेल फाइल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड यस, और वो कैप्सूल क्वेश्चंस होते हैं ट्रांसलेटर्स में ना, हाँ, वो मुझसे पूछा है किसी उसमें ने कि इसके एक्सेल आंसर फाइल कैसे अलाउड दें। नहीं होती, हाँ, उसके उसमें आंसर, एक्सेल फाइल अलाउड नहीं होती। अच्छा, उसके उसमें एक्सेल फाइल अलाउड नहीं है। हाँ नहीं होती है। हाँ, तो बाकी असाइनमेंट्स होते हैं और कैप्सूल क्वेश्चंस होते हैं। असाइनमेंट्स में यू कैन अपलोड, but capsule questions mean you have to write it there, or you can upload your Word documents and photos there. okay Yeah, okay, so this is how we answer capsule questions. yeah. And then yes, of course, like copied नहीं होना चाहिए, कोई websites है ना, they have high regulations for plagiarism and all that. right right, okay To do it yourself. okay। ट्रांसट्यूटर पे भी क्वेश्चंस अगर अवेलेबल नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, तो हुआ आपके साथ हाँ में? वो तो कैप्सूल क्वेश्चंस तो जैसे अवेलेबल होते हैं, है ना। डायरेक्ट असाइनमेंट्स, कैप्सूल क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट असाइनमेंट्स से अवेलेबल नहीं होते, लाइक इट्स डिफिकल्ट, है ना। ओके ओके समटाइम्स हार्डली यू गेट, लाइक नाइट टाइम में अवेलेबल होते हैं। कैप्सूल क्वेश्चंस आर अवेलेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ऑल राइट। तो आपके हिसाब से इन तीनों में से बेस्ट को आपको कौन सा अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, सिस्टम इज गुड एंड अर्निंग वाइज एंड एवरीथिंग? मेरे हिसाब से मैं जिसमें ज्यादा इंडल्ज भी हूँ वो है चेक, है ना। बिकॉज उसमें बहुत सारे अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, अराउंड 1000 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। ओके, एंड देन या वो एक तो वो हैंड रिटन फॉर्मेट भी हम चेक में अपलोड कर सकते हैं, विच मेक्स इट इजियर, यू नो, राइटिंग एंड यस यस। डूइंग। एंड या 24/7 अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस ना चेक पे। अच्छा, इसमें अकाउंटेंसी के तो होते ही हैं। ओके, तो अभी भी अप्रोक्सीमेट, मैं लॉग इन करूंगी तो अभी भी मिल जाएगा मुझे तो क्वेश्चन। approximate, if you're comfortable, I would like to know from you, just to give idea to others, how much do you earn from these websites individually?
from Chegg, from Bartleby and Transtutor? If from Czech, it's around 1700 to 1800 per day, okay? Okay. And then Bartleby, it's around 500 rupees per day, okay? Okay. Because questions are not much available in Bartleby, to be honest, right? That's why. And then if translators, then translators, it's very rare, if I say. Okay. 4 to So, 5,000 per month, yeah. okay, in Translator, Transtutor. yeah. Okay. All right. Okay. Is there anything else which you would like to tell my subscribers to keep in mind while working for these platforms? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ कोई ऐसी चीजें Yes, जो वो ध्यान यही है रखें? कि हाँ, यही ध्यान में ऑब्वियसली जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है कि हमें अवेलेबल होंगे तभी तो हम करेंगे, राइट? तो चेक पे हमेशा 24/7 आपको अवेलेबल रहेगा, अभी भी लॉग इन करूंगी तो मिल जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है? और फिर या प्लेगरिज्म अलाउड नहीं होता, ये बहुत ध्यान देने की Plagiarism, yeah, जरूरत है। मेरे plagiarism साथ is भी not. बिगनिंग में हुआ है, ठीक है? लाइक दे रियरली रिकॉग्नाइज 97 to 98% प्लेगरिज्म आया हुआ है मेरे में भी, Okay. ओके? Okay. Okay. अगर आप जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर भी यूज करोगे ना प्लेगरिज्म के लिए, वो आते हैं हाँ, but सॉफ्टवेयर्स they की इसमें come to know. प्लेगरिज्म हटा दो, They come to know. बट देन दे कम टू Yeah, नो, या that is. सो खुद से करना पड़ेगा, राइट? एंड देन ट्रांसट्यूटर्स वगैरह में तो इंटरव्यू एंड ऑल भी होते हैं, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू पास, Okay. ओके? Okay. So, So to get direct assignments and translate, it's very difficult. They ask questions from very from different platforms. subject related questions they ask, or do they How ask? no, it's subject related questions only, definitely. Okay. But they have wide variety of questions, like they are very experts and all. So इन तीनों में से सबसे easiest process किसका है selection का? Selection process भी check का ही है, Check का है. easiest. Okay. And actually मेरे बहुत सारे Like yeah. लाइक बार्टली बी में भी वो जैसे कि बाद में मेल भेजते हैं क्या हमें क्वेश्चंस का, चेक पे ऑन द स्पॉट है, वंस यू स्टार्ट दे आस्क योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन देन दे स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट. बार्टली बी में वो बाद में लिंक भेजते हैं, देन देयर इज अ टाइम लिमिट जिसमें आपको आंसर देना पड़ता है. ओके यू नो, ओके ओके. एक्चुअली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे स्टूडेंट्स चेक पे ऑलरेडी हैं और काफी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं. okay. तो Yeah, चेक yeah, इज, आई मीन दे ऑल से दैट अवेलेबिलिटी बहुत होती है चेक questions या की. प्रेफर करते हैं, अवेलेबिलिटी होती है. फिर सिलेक्शन प्रोसेस इज आल्सो बेटर, लाइक ट्रांसलेशन में इंटरव्यू प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है, ओके? तो ट्रांसट्यूटर में जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है? इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में होता है. यूएसए से. So if you're not, यूएसए से होता है वो भी. so that means, Yeah, if you're not good at English, it will be very difficult for you. okay. Because you, first of all, you have to understand their accent also, right? USA accent. Exactly. And then you have to give them answers in a proper good English. That is also there. Okay. All Yeah. right. Okay. Thank you so much, Dimple, for your precious time. I really Thank you. appreciate your this time, because बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड वेबसाइट्स है. एक्चुअली होता क्या है, किसी के साथ हो सकता है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ हो, तो वो आके कमेंट कर देता है कि ये फ्रॉड वेबसाइट है, जबकि ऐसा नहीं है. People are earning from these websites. So, do you want to say? Yes, and TDS पे TDS कट होता है, ये भी. हाँ, ये किस पे होता है? सब सारे all 3 platforms. Okay. You know, 10% TDS is deducted. Once you get notified कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा, उसमें से 10% TDS डिडक्ट होके ही मिलता है आपको पेमेंट ना बाद में. Okay. तो और आपको पेमेंट्स तीनों से आ चुकी है ना? एक बार तो रिसीव हो चुकी है. मतलब पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? बैंक डिटेल, पैन कार्ड वगैरह देना इस, आई मीन पैन डिटेल देना इज सेफ, राइट? Yeah, it's safe. It's totally safe. Yeah. Okay, so it's a good way of earning money for students and for those who are not able to give many number of hours to other work, right? Yeah, it's nice. It's Okay. very nice. So Dimple, thank you so much. और आगे भी I would request you, अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं एक बार फिर बुलाऊंगी आपको, ठीक है? Yeah, and do apply on other sure. platforms. I have made videos on other platforms also. Okay, sure. And Sure. to all my subscribers, I hope this video will be helpful to you. If you like it, do let me know in the comment box. Thank you so much for watching me. Have a good day. Thank you.